Hello, dear friends. Very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of ophthalmology. In this session, we are going to start our conjunctival diseases, but before it, we are going to integrate with our anatomy portion. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कंजक्टाइवा होता क्या है. Here you can see our eyeball. This is our colorful area. Yes, iris, and this opening in the iris, that is the pupil. इसके ऊपर एक पतला सा ट्रांसल्यूसेंट ट्रांसपेरेंट एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं. फाइन. नाउ सी, दिस इज द स्क्लेरा पार्ट, द जंक्शन बिटवीन दिस अवर iris, cornea, and this is sclera, which is covered by the thin translucent membrane like structure just like the cornea, जिसे हम कंजक्टाइवा कहेंगे. तो ये जो स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन होता है, दैट इज नोन एज लिम्बस. व्हाट आई वांट टू टेल यू, इन अवर आई पोर्शन you will see the different part. Yes, this black color opening is definitely our pupil. Then you are looking this colorful area, this is known as our iris, and here is sclera. Fine. Try to understand. Iris portion, it is covered with transparent membrane, cornea, while the sclera is covered with transparent membrane, conjunctiva. तो ये जो स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन है, यस, द जंक्शन बिटवीन द स्क्लेरा एंड द कॉर्निया, known as this junction, is known as limbus. ये टर्म अब बार बार आएगा. Limbus is nothing, it is sclerocorneal junction. Getting the point? Further, see here, ये जो कंजक्टाइवा है, ये हमारे स्क्लेरा पार्ट के ऊपर तो होता ही है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, दैट्स इट इज नॉट विजिबल, बट इट इज ऑल्सो कवरिंग द इनर साइड ऑफ द आईलिड. यहां पर भी होता है. फाइन. सो you are looking that this conjunctiva is having the two different parts, one which is over the sclera, that is known as bulbar conjunctiva. Two main parts, और भी कुछ parts हैं जो हम बाद में देखेंगे, and another which is over eyelid. So this is our eyelid portion, so this is known as palpebral conjunctiva. These are the basic knowledge. Okay, now one by one, step by step, we are moving for the our different more portions. How can we define the conjunctiva? First point, yes, it is translucent mucous membrane. ये कुछ और नहीं है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि ट्रांसल्यूसेंट है, ट्रांसपेरेंट है. व्हाट अदर पॉइंट यू कैन रिमेंबर? यस, विच लाइन्स पोस्टीरियर सरफेस ऑफ eyelid as well as it is also lining anterior aspect of eyeball. तो ये eyelid के पीछे और eyeball के आगे इन पोर्शन को कवर करता है. वन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. सपोज दिस इज अवर eyeball. We are looking from the lateral side. So here you can see the bulged portion presenting the cornea. Fine. Now try to understand. We are looking from the lateral side. So this is our upper eyelid and here is our lower eyelid. Now try to understand. This mucous membrane is covering the posterior surface of the eyelid,
posterior surface of the eyelid and then turning and covering the anterior aspect of the eyeball up to the sclerocorneal junction. Up to the sclerocorneal junction, you can say limbus. Okay, so further again the different points. This is our eyelid, here is our eyeball, here you can see the bulged portion, diagrammatic presentation, cornea. This portion will be our sclerocorneal junction known as limbus. Then you can observe here the different portion. I told you this will be known as palpebral because it is lining the eyelid. Conjunctiva, while here you can see our bulbar conjunctiva. Fine. Now proceeding for the next. कंजक्टाइवा का मतलब क्या है? सी हियर, नाम से लग रहा है कंजक्ट मीन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्वाइनिंग. यस, टू ज्वाइन. ट्राई टू रिकॉल, हमने एनाटॉमी में हमने देखा था कॉन्जॉइंट टेंडन जो कुछ और नहीं था, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस का कंबाइंड ज्वाइंट टेंडन था. तो यहीं से हम इंटीग्रेट करते हैं, ये कॉन्जॉइंट वर्ड से बना हुआ है कंजक्टाइवा. यस, इसका मतलब है टू ज्वाइन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्वाइनिंग. यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या करता है. इट ज्वाइंस eyeball टू eyelid. ये eyeball को eyelid के साथ जोड़ता है. सिंपल. फर्दर ट्राई टू अंडरस्टैंड other point you can remember. It is stretched from, yes, lid margin to limbus. तो एक चीज हम हमेशा याद रखेंगे कि ये आईलिड की मार्जिन से शुरू होता है और स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन पर खत्म होता है. नेक्स्ट, एंड इन बिटवीन दिस द स्पेस इज नोन एज कंजक्टाइवल सैक. तो ये जो आपको स्पेस नजर आ रहा है इसे ही हम कहेंगे सैक इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द कंजक्टाइवा. तो ये है हमारा कंजक्टाइवल सैक. आने वाले क्लासेस में और हम इसे ऑब्जर्व करेंगे. नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंजक्टाइवा वी आर लुकिंग द इमेज फ्रॉम द अवर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक खुराना ऑप्थेल्मोलॉजी. You can see one beautiful diagram is given. We are going to understand the concept. See here, you can observe that this is our eyeball. At inner side, you can see there is our different structures, ciliaries, which are sending the projection, ciliary body, zonules to hold the lens, and iris is also visible. और यहां पर आप देख सकते हैं हमारा लेंस. Yes, this all the structures we will see furthermore, but right now this is our lens. हमने ये अपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले पोर्शन में देखा हुआ है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज लेयर ऑफ कंजक्टाइवा ओवर द आईबॉल एज वेल एज आईलिड. तो पहले समझते हैं आईलिड कहां पर है. जस्ट फोकस ओवर दिस पोर्शन. दिस इज अवर आईलिड, अपर आईलिड, एंड हियर इज अवर लोअर आईलिड. आराम से स्टेप बाय स्टेप थ्योरी से लेकर के एमसीक्यू सारी चीजों को हमको समझना है. फाइन. So these are our eyelid. Fine.
आगे हम समझते हैं कि इस आईलिड के अंदर और हमारे आईबॉल के बाहर एक ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन नजर आ रहा है, which I am showing with the light blue structure. Yes, can you see? This layer is attached with the our eyelid. इसलिए इसको हम बोलेंगे palpebral conjunctiva. Then it is getting reflection. ये टर्न ले रहा है और आईबॉल के ऊपर रन कर रहा है, and it is ending near the our sclerocorneal junction. Yes, this portion is our junction between sclera and the cornea, so it is known as limbus. तो लिम्बस वाले पोर्शन में ये खत्म हो रहा है. सेम वे यू कैन फॉलो हियर. दिस इज आवर palpebral conjunctiva. Then here you can see the bulbar conjunctiva. Okay, now try to understand. यहां पर आपको आईलिड भी नजर आ रहे हैं. Just with the hairlines it has been shown. Different glands are visible here. We will see in our separate portion कौन कौन से gland नजर आ रहे हैं. Yes, you can see there is the presence of gland of Gis just at the root of the eyelid. यहां पर आपको gland of Gis नजर आ रहे हैं. We will see. और उसके पीछे हमारे मार्जिन में आप मिबोमियन ग्लैंड देख रहे हैं. Within our tarsal plate, these are extending. These are the very large gland. जैसे कि नाम ही बड़ा है, मीबोमियन ग्लैंड भी बड़ा है. Okay. Also at the root you can see the gland of mole. So gland of Gis and gland of mole, they are just at the root of our eyelid. Okay, hairs. और टार्सल प्लेट के अंदर आपको मिल रहे हैं मीबोमियन ग्लैंड. Then you are also able to observe the glands of Wolfram जो inner plate पर आपको located नजर आएंगे. So these are our glands of Wolfram. और इसी तरीके से जब आप जा रहे हैं, यहां पर टर्न पोर्शन दिख रहा है, दैट इज अवर फॉर्निक्स पार्ट. ओके, हियर यू विल सी द अवर स्मॉल glands of Krause which are embedded with our lacrimal gland. Lacrimal gland जो हमने एनाटॉमी में देखा हुआ है. बाकी ग्लैंड भी हम डिटेल में देखेंगे. नाउ सी हियर, दिस टर्न पोर्शन इज फॉर्निक्स, सुपीरियर फॉर्निक्स. हमने एनाटॉमी में भी फॉर्निक्स पढ़ा था, which was the example of the association fiber, commissural fiber and projection fiber. ठीक उसी तरीके से यहां पर भी turn portion where our palpebral and bulbar conjunctiva they are meeting, that is our fornix. So you can observe this structures as well as here will be the inferior fornix. तो fornix वाले पोर्शन पर आपको gland of Krause नजर आएंगे. Okay, now similar glands whatever seen in our upper eyelid, same are seen in lower eyelid also. Try to understand our further more things. After this diagrammatic presentation, now we can easily say that conjunctiva is having the three parts. One is our palpebral conjunctiva, another is our bulbar conjunctiva, and third one is conjunctival fornix. Fine. Now we are going to look our more detail that this palpebral conjunctiva is again divided into the three parts. Marginal conjunctiva, second one is tarsal conjunctiva, and third one is orbital conjunctiva. Now each conjunctiva in more detail. मार्जिनल कंजक्टाइवा के बारे में हम कुछ पॉइंट्स याद रखते हैं. पहला हम देखते हैं एक्सटेंशन. ये कहां से कहां तक फैला हुआ होता है. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेयर. ओके, इसके तीन लेयर हमको देखने हैं. पहला हम देखेंगे जो मार्जिन के पास होता है, मार्जिनल. दूसरा हम देखेंगे जो हमारे अपर लाइट के
अपर आईलिड के अंदर होता है, इसको हम टार्सल प्लेट भी कहते हैं, एनाटॉमी पोर्शन में हमने देखा हुआ है। सो दिस इज नोन एज द टार्सल कंजक्टिवा। और तीसरा जो हमारे फॉर्निक्स के पास टर्न ले रहा है, तो इसको हम कहेंगे ऑर्बिटल कंजक्टिवा, क्योंकि ये ऑर्बिट के पास में है। गेटिंग द पॉइंट? सो वी आर लुकिंग दैट this our marginal conjunctiva, it is extending from lid margin to 2 mm on back of eyelid. Okay, so it is extending from the lid margin to 2 mm back of the eyelid. वहां से ये स्टार्ट हुआ और ये कहां तक जाएगा? yes, up to one shallow groove known as sulcus subtarsalis. तो एक गड्ढा है टार्सल प्लेट के अंदर नीचे, वहां तक ये एक्सटेंड होता है। तो लिड मार्जिन से 2 मिलीमीटर दूर सल्कस सबटार्सेलिस है, जो एक हल्का सा शैलो ग्रूव है, यहां तक एक्सटेंड होता है। नेक्स्ट, अनदर पॉइंट विच वी हैव टू रिमेंबर, ये एक्चुअली एक ट्रांजिशन जोन को शो करता है। इट इज द ट्रांजिशन जोन। सो दिस इज अवर अनदर नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दैट दिस ट्रांजिशन जोन इज बिटवीन स्किन एंड अवर कंजक्टिवा प्रॉपर। तो ये एक ट्रांजिशन जोन तक फैलेगा। ओके, ये एक ट्रांजिशन जोन को शो करता है, जो स्किन और कंजक्टिवा जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से ये स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक फॉर द अवर टार्सल कंजक्टिवा, दिस पोर्शन। सो व्हाट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी कैन रिमेंबर अबाउट इट? फर्स्ट पॉइंट हम याद रखते हैं इसके बारे में, टीटीवी। टीटीवी, व्हाट इज दिस टीटीवी? टी फॉर थिन, ये पतला होता है। टी फॉर ट्रांसपेरेंट, यस इट इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर। वी फॉर, आप याद रख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा वैस्कुलर है। तो टीटीवी फॉर टार्सल कंजक्टिवा, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो रिमेंबर द टीटीवी। ओके, फर्दर मोर पॉइंट्स। सेकेंड, इट इज फॉर्मली एधेरेंट, बहुत अच्छे से चिपका हुआ है। हम किसकी बात कर रहे हैं? इस पोर्शन की। दिस इज अवर टार्सल, ये जो पूरा पोर्शन है हम इसकी बात कर रहे हैं। सो दिस इज अवर टार्सल कंजक्टिवा। इट इज फॉर्मली एधेरेंट टू होल टार्सल प्लेट इन upper lid. Okay, so these are our points. Third point, what you can remember, that in lower lid, upper eyelid की तो आपने बात कर ली, lower eyelid में इसका क्या हो रहा है? Yes, it is only adherent to half width of टार्सस। यस, आपको पता है कि अपर आईलिड बड़ा है, इसका टार्सल प्लेट बड़ा है। लोअर आईलिड कंपैरेटिवली छोटा है, इसका टार्सल प्लेट छोटा है। दैट्स व्हाई इन लोअर आईलिड इट इज ओनली ऑक्यूपाइंग half width of the tarsus. Okay, and you will see one more point, that here the tarsal glands are present. Tarsal glands, these are seen through it as येलो स्ट्रिक। तो जब हम इसको देखते हैं नीचे की तरफ, तो हल्की पतली सी येलो लाइन की तरह ये यहां पर आपको टार्सल ग्लैंड दिखाई देते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स जो हमारे क्लिनिकल पोर्शन में काम आएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ऑर्बिटल पार्ट की हम बात करते हैं। तो ऑर्बिटल पार्ट में, यस, you can see this is our fornix and here is our tarsal plate. तो इन दोनों के बीच वाला जो पोर्शन है यहां पर, इसे हम कहेंगे अपना palpable part, orbital part. Okay, so this is our orbital conjunctiva which
लाइज लूजली, ढीला ढाला सा लेयर है, बिटवीन अवर टार्सल प्लेट एंड फॉर्निक्स। तो ये टार्सल प्लेट और फॉर्निक्स के बीच का पोर्शन है। फिर से आप लोगों को और इजी से समझ में आए इसलिए आप यहां पर देख रहे हैं ये आई बोन, फाइन। इसके ऊपर है आपका प्यूपिल, गेटिंग द पॉइंट। और इसके साथ आप देख रहे हैं यहां पर अपर आईलिड, यहां पर देख रहे हैं लोअर आईलिड। ओके, तो अभी हमने देखा, यस, दिस इज अवर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा, तो शुरू में ये रहेगा मार्जिनल। फिर इसके बाद का जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे टार्सल, और फिर छोटा सा लूज पार्ट इसको हम कहेंगे ऑर्बिटल। फिर उसके बाद ये टर्न ले रहा है, फॉर्निक्स बनाएगा, सुपियर फॉर्निक्स, इंफियर फॉर्निक्स, और फिर ये आईलिड के ऊपर होते हुए लिम्बस में खत्म हो जाएगा। फाइन। सो अगेन फॉर योर इंफॉर्मेशन यू कैन सी दिस इज अवर marginal, then here you had seen tarsal, and then you had seen orbital, conjunctiva, conjunctiva, conjunctiva. These are the our three parts of palpebral conjunctiva. Okay, so this was the our first part of the conjunctiva. Bulbar conjunctiva, this is our second bulbar conjunctiva, which is just above our bulb, eye bulb. और ये जो पोर्शन है जो टर्न हो रहा है इसको हम कह रहे हैं कंजक्टाइवल फॉर्निक्स। इन द सिंपल वर्ड यू कैन सी द थ्री पार्ट्स ऑफ द कंजक्टाइवल, पाल्पेब्रल, bulbar and conjunctival fornix. Simple. Now we are going to look about the parts of the bulbar conjunctiva. Yes, first it is thin, transparent, and it lies over deep structures. So because it is lying over the deep structures, ये थिन है, ये लूज है, दैट्स वाई इट कैन बी मूव्ड इजिली, सो इट इज मूव्ड इजिली, ढीला ढाला लेयर है। नेक्स्ट व्हाट यू कैन रिमेंबर, यस, इट इज सेपरेटेड, क्योंकि ये आसानी से मूव हो जाता है इसलिए आप आसानी से याद रख सकते हैं कि इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एंटीरियर स्क्लेरा by episcleral tissue and our tenons कैप्सूल। तो ये इपीस्क्लेरल टिश्यू और टेनन्स कैप्सूल से सेपरेट रहता है, जुड़ा रहता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अवर डिफरेंट मोर पॉइंट्स। हमने एनाटॉमी वाले पार्ट में देखा था स्क्लेरा के ऊपर स्पेस होता है, इपीस्क्लेरल स्पेस, और ये एक कैप्सूल से घिरा होता है जिसको हमने टेनन्स कैप्सूल कहा था। ओके, सो फर्दर यू कैन रिमेंबर द नेक्स्ट पॉइंट। 3 mm का एक रिज होता है, किसका? ऑफ अवर बल्बर कंजक्टाइवा। तो कंजक्टाइवा, बल्बर कंजक्टाइवा का बना हुआ 3 mm का एक रिज कॉर्निया के चारों ओर होता है, अराउंड कॉर्निया, विच इज सिंपली नोन एज लिम्बल कंजक्टाइवा। ओके, एंड इन दिस एरिया ऑफ द अवर लिम्बल कंजक्टाइवा एट लिम्बस पोर्शन, हमारा जो टेनन कैप्सूल और इपी स्क्लेरल टिश्यू होता है वो अच्छे से चिपक जाता है, फ्यूज हो सकता है। ओके, सो दीज आर आवर डिफरेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द अवर पाल्पेब्रल, यस, बल्बर कंजक्टाइवा।
तो बल्बर कंजक्टाइवा के बारे में हमने एक फ्लो चार्ट बनाते हुए नोट्स तैयार किया जो हमारे क्लिनिकल के लिए यूजफुल रहेगा। फाइन, नाउ कम टू द नेक्स्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंजक्टाइवल फॉर्निक्स। फॉर्निक्स का मतलब होता है टर्न पार्ट। ओके, सो वी हैड सीन कि इसके दो पार्ट थे, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो टर्न पार्ट है ये कंजक्टाइवल फॉर्निक्स है, ऊपर वाला सुपीरियर फॉर्निक्स, और यहां पर नीचे वाला आप देख रहे हैं दैट इज अवर इंफीरियर फॉर्निक्स सिंपली। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये है क्या। इट इज कंटिन्यूअस सर्कुलर कर्ल डू सैक। आपको याद है हमने अपेंडिक्स में भी देखा था कि अपेंडिक्स जो होता है वो कर्ल डू सैक अपीयरिंग स्ट्रक्चर है, मींस इट इज क्लोज फ्रॉम ऑल साइड बट ओपन एट वन साइड। कोई भी ऐसा बंद स्ट्रक्चर जो सभी तरफ से क्लोज है लेकिन एक तरफ इसकी ओपनिंग है उसको हम कर्ल डू सैक कहते हैं, जैसे कि अपेंडिक्स। इसी तरीके से फॉर्निक्स इट इज क्लोज फ्रॉम ऑल अराउंड, लेकिन एक पोर्शन इसका ओपन है हमारे आईलिड की तरफ। कैन यू सी हियर, यस, व्हाई वी आर सेइंग द कर्ल डू सैक, क्योंकि ये इधर बस ओपन है, बाकी यस ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ ये क्लोज होता है। दैट्स व्हाई इट इज अवर कर्ल डू सैक अपीयरिंग स्ट्रक्चर which is open only at medial side by caruncle। yes, आई बॉल की स्ट्रक्चर में हमने मीडियली देखा था caruncle एलिवेशन एंड प्लाइका सेमी lunaris which is considered as the third eyelid in lower eye animal, medial side का fold, and then you can remember the further more points. It joins our bulbar conjunctiva, ये bulbar conjunctiva को जोड़ता है किसके साथ, palpebral conjunctiva के साथ। again we can divide it into the four subdivisions। फोर सब डिविजन कौन कौन से हम कह सकते हैं, यस, सुपीरियर फॉर्निक्स, इंफीरियर फॉर्निक्स जो इमेज में दिख रहे थे, लेकिन मीडियल और लैटरल की तरफ ओपन साइड भी रहेंगे, इसलिए हम मीडियल फॉर्निक्स और लैटरल फॉर्निक्स टर्म भी यूज करेंगे। वी विल सी। सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंजक्टाइवा। तो इस तरीके से हमने कंजक्टाइवा का एक नोट्स यहां पर कंप्लीट किया। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस फॉर द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंजक्टाइवा। यस, इट इज हैविंग द थ्री लेयर हिस्टोलॉजिकली। यू कैन सी द फर्स्ट वन इज आवर epithelial layer, second one is having lymphocyte aggregation known as adenoid layer, and last one is connective tissue layer which is known as fibrous layer. So you can say there are the three layers. Now try to understand this epithelial layer. What are the different peculiarities about it? First, it is approximately 2 to 5 layered. First point, because here is the friction. Yes, there is the blinking friction. So here will be stratified squamous epithelium, but keratinized और non keratinized। हिस्टोलॉजी के साथ याद कीजिए, क्योंकि ये गीला है और फ्रिक्शन होता है इसलिए नॉन केरेटिनाइज्ड। अगर ड्राई रहे और फ्रिक्शन हो स्किन तो वहां पर केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। सो दिस इज द इंटीग्रेशन विथ आवर एनाटॉमी। यस, हियर इज नॉन केरेटिनाइज्ड stratified squamous epithelium. Very most important question. Another one, because here is a secretion, so here is the presence of our goblet cells also. Approximately 10% cells in this layer, they will be our, yes, goblet cells. तो यहां पर आप सिंपल सा एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। फाइन, सो जस्ट these are the our different cells, but it is stratified squamous epithelium. Now focus for the adenoid layer. What are the special point? ये जो adenoid layer है इसमें lymphocyte होते हैं, that's why it is also known as lymphoid layer.
you will observe in this lymphoid layer there is presence of, yes, रेटिकुलेटेड काइंड ऑफ अपीयरेंस। तो ये कुछ और नहीं है, ये हमारा रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है, बिकॉज इट इज हैविंग रेटिकुलेटेड appearance. Okay, so what are the different things which you have to focus? First point, it is having reticular connective tissue. Second point, here you will see the lymphocyte aggregation, इसीलिए इसको हम एडिनॉइड लेयर कहेंगे। ओके, नाउ इट इज मोस्ट डेवलप्ड इन fornices region, the superior inferior fornices region, here it is mainly developed. Now next point, it develops after 3 month of life. तो इसे क्या क्लिनिकल पॉइंट है ये हम देखते हैं, बिकॉज इट इज डेवलपिंग आफ्टर 3 month ऑफ द लाइफ, दैट्स वाई इन केस ऑफ कंजक्टाइवल इन्फ्लामेशन, ये किसी में भी मिल सकता है, बच्चों में अगर मान लो हुआ, यस, इन इन्फेंट, इस सिचुएशन में क्योंकि लिम्फोसाइट तो है ही नहीं, इसलिए किसी भी तरीके का लिम्फोसाइटिक रिएक्शन नहीं मिलेगा, नो लिम्फोसाइटिक फॉलिक्यूलर रिएक्शन इज सीन. So this is one important point which we have to remember. Now come to the our next part. Here you can see the aggregation of the lymphocyte. Yes, कायदे से इसको ब्लू कलर के डॉट से शो करना चाहिए. हिस्टोलॉजिकली lymphocyte they wear appear with single large nuclei. So these are our lymphocytes aggregation, इसीलिए इसको हम एडेनॉइड लेयर कह रहे हैं. फाइन, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर fibrous layer. You can see this entire layer which is having the fibrous connective tissue appearance. First point, आप यहां पर देख रहे हैं कि इसमें खूब सारे कोलेजन 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 के फाइबर हैं, बीच बीच में फाइब्रोब्लास्ट आपको नजर आएंगे. सो द फर्स्ट पॉइंट दैट हियर एक्सेसिव कोलेजन एज वेल एज इलास्टिन फाइबर्स आर सीन. पहला पॉइंट, इसीलिए इसको फाइब्रस लेयर कह रहे हैं. नाउ दिस इज सेकेंड पॉइंट दैट इट इज थिकर देन एडिनॉइड लेयर. अगर एडिनॉइड लेयर से सेकेंड लेयर से आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा मोटा आपको नजर आएगा, एक्सेप्ट एट टार्सल कंजक्टाइवा, जहां पर ये हमको थिन मिलता है. What the other point you can remember? Yes, it contains, third point, it contains vessels, nerves. तो यहां पर वेसल्स होते हैं, यहां पर नर्व्स होते हैं. और अगला पॉइंट जो आप याद रख सकते हैं, इट ब्लेंड्स विथ टेनन्स कैप्सूल. ये जो फाइब्रस लेयर है कंजक्टाइवा का, ये टेनन कैप्सूल के साथ मर्ज हो जाता है. कहां पर? इन बल्बर रीजन. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स अबाउट द आवर हिस्टोलॉजिकल लेयर ऑफ कंजक्टाइवा. लेकिन अब एक काम करते हैं, इसे और इनलार्ज करते हैं और इसके डिफरेंट माइन्यूट पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं. अगेन विथ प्रॉपर रेफरेंस फ्रॉम आवर ऑप्थेल्मोलॉजी टेक्स्ट बुक खुराना, वी आर गोइंग टू लुक द different microscopic structure of the conjunctiva, different layers at the different part. So try to understand. यहां पर आपको दिख रहा है कॉर्निया. Yes, this is our corneal epithelium which is actually not drawn. Okay, ये कॉर्निया है, यहां पर हमारा आईबॉल इधर रहेगा. फाइन, सो राइट नाउ वी आर जस्ट शोइंग द कॉर्निया. अब हम देखते हैं कंजक्टाइवा. तो हमने 3 टाइप के कंजक्टाइवा देखे थे. पहला हमने लर्न किया था पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा, जो आईलिड के अंदर होगा, इधर आईलिड रहेगा.
फिर उसके बाद हमने देखा था बल्बर कंजक्टाइवा, और साथ में हमने लर्न किया था अवर कंजक्टाइवल फॉर्निसेस, तो जिसमें सुपियर फॉर्निक्स इंफीरियर फॉर्निक्स का पार्ट ऑब्जर्व किया था। सो वन बाय वन, यस, यहां पर हम अपने पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा का पहला पोर्शन देख रहे हैं, मार्जिनल कंजक्टाइवा। सो व्हाट द डिफरेंट पॉइंट्स यू कैन ऑब्जर्व, कैन यू सी, ये जस्ट मार्जिन में है इसलिए स्किन के साथ चिपका रहेगा, इसलिए इसमें प्रॉपर्टी जो है वो स्किन की तरह होगी। कैन यू सी, इट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम लाइक अपीयरेंस, मल्टीपल लेयर्स। यस, ये आपका पहला लेयर है, तो आप याद रख सकते हैं इसमें सिर्फ वन टाइप ऑफ टिश्यू, यस, वन टाइप ऑफ सेल्स आर फाउंड। ये पहला लेयर है इसलिए वन टाइप ऑफ सेल। यस, it is having the 5 layered stratified squamous epithelium, बस इतना याद रखना है। अगला, अब हम आगे बढ़ते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं देयर इज द टार्सल कंजक्टाइवा। तो ऊपर वाला अपर टार्सल, नीचे वाला लोअर टार्सल, दोनों एक जैसे स्ट्रक्चर वाले हैं। सो इट इज अवर सेकेंड लेयर, इसलिए आप बोलेंगे टू टाइप्स ऑफ सेल्स। आपको याद है हमने एक्सिलरी आर्टरी पढ़ी थी, एक्सिलरी आर्टरी फर्स्ट पार्ट की 1 ब्रांच, सेकंड पार्ट की 2 ब्रांचेस, थर्ड पार्ट की 3 ब्रांच। इसी तरीके से हमने फेरिंग्स पढ़ा था, तो फेरिंग्स के 3 पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। यस, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। फर्स्ट पार्ट के पीछे एक सर्वाइकल वर्टिब्रा, सेकंड पार्ट के पीछे 2 सर्वाइकल वर्टिब्रा, थर्ड पार्ट के पीछे 3 सर्वाइकल वर्टिब्रा। इसी तरीके से कुछ कहानी चल रही है। यस, पाल्पेब्रल कंजक्टिवा फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर में एक टाइप का सेल, सेकंड पार्ट इसके अंदर 2 टाइप के सेल। When you will observe, you will see there is a one layer is superficial. Can you see? This is our superficial layer. You can observe these are cylindrical, while there are the deep layer. These deep layers cell comparatively they are flat. Okay, so what you will say, two types of the cell, these are, yes, you will say superficial layer and deep layer. Fine, in superficial layer you will see there is cylindrical cell layer, and in the deep layer you will see there is presence of flat cell layer. Okay, so in the image you can observe this is our superficial cell layer, while the flat cell layer they are at the depth. Fine, now come to the next. We are going to talk about our fornix as well as bulbar conjunctiva. So just focus over the image from the our Khurana textbook. Yes, both at the fornix and the bulbar conjunctiva having the same kind of the feature. Yes, एक तरीके से हम तीसरा पार्ट देख रहे हैं, तो यहां पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यस, देयर इज प्रेजेंस ऑफ 3 types of cells. What are these 3 types of the cells? You can see ये ऊपर वाला है, इसको हम कहेंगे सुपरफिशियल। फिर उसके बाद आपको बीच वाला नजर आ रहा है, दैट इज अवर मिडिल सेल लेयर। और फिर आपको नजर आ रहे हैं, यस, यू कैन सी द डीपेस्ट मोस्ट, सो डीप लेयर। फाइन, सो यू कैन observe these superficial layers showing with the different color, and you can see the deep layer cells, and here you can observe, yes, superficial, then middle. This red one is showing the deep layer. So 3 types of the cells you have to show. Again you can observe this superficial layer is having cylindrical cells,
So you can say cylindrical layer. This middle layer is having the polyhedral cells. So you can say polyhedral layer. While the deep layer, it will show the cuboidal cells. That's why cuboidal layer. एक सिंपल सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हमने अपने टेक्स्ट बुक के साथ इंटीग्रेट करते हुए किया है. नाउ see here, you will see these are present in our bulbar conjunctiva as well as fornix conjunctiva both. Now when you will look the limbal conjunctiva, मैंने आपको बताया था limbus is the part where the sclera and cornea they are uniting, means sclerocorneal junction. तो ये हमारा अगला लेयर है. So this is showing 5 to 6 layered cells. Okay, इसमें जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे इट इज रिच इन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम. फाइन. एंड एट द बेसल पोर्शन, इसका जो सबसे नीचे वाला पार्ट रहेगा बेसल पोर्शन, दिस वन, it will show the limbal cells at basal layer. This is our limbal stem cells at basal layer. So these are our important points regarding the our microscopic structure of conjunctiva, जो हमें conjunctiva के diseases को समझने के लिए हेल्पफुल रहेंगे.